everyone, my name is Rashi and today we'll be starting with a new chapter of class 8. The name of the chapter is Comparing Quantities. Chapter number 8 of class 8. Now, comparing quantities. अब इसी नाम से we have done one chapter in class 7th also. Okay, so basically this is an introduction video. In this video, we'll be discussing all the concepts, all the topics that will come up in this chapter, so that when you will start doing the exercise, it will be very easy for you to solve them. Okay, so basically we'll be discussing all the concepts in this video. Okay, but first we'll be recalling what we have already done in class 7th. In class 7th also one chapter was comparing quantities. The name was same. So in that chapter we did in that video what we did in that chapter what we did ratio. हमने ratio पे बात करी. We talked about ratio, we talked about percentage, okay, and we also talked about कन्वर्जन ऑफ रेशो टू परसेंटेज. हमने रेशो को परसेंटेज में कन्वर्ट किया, परसेंटेज को रेशो में कन्वर्ट किया. ठीक है. सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट रेशो. सपोज आई गिव यू नंबर ऑफ बॉयज इन अ क्लास आर 30 and number of girls are 25. Okay, so now I ask you, what is the ratio of the number of boys to the number of girls? So first I ask the ratio of the number of boys to the number of girls. मतलब boys वाला number पहले आएगा. So 30 is to 25. You will say, ma'am, 30 is to 25 because first number of boys थे, number of boys 30 हैं, then number of girls थी and number of girls हैं 25. So basically ratio means comparison जो हम two numbers के बीच में कर रहे हैं. What is the ratio of the number of boys to the number of girls? 30 is to 25. Now this was ratio. रेशियो के बाद हमने किया था इन आवर प्रीवियस क्लास इन क्लास 7th वी डिड परसेंटेज. ओके, नाउ दिस वाज रेशियो. नाउ लेट्स कम टू परसेंटेज. फॉर परसेंटेज लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. 2:3 हमारे पास ये एक For percentage, let's take an example. I told you in the last topic, in the topic ratio, that हमारे पास 30 boys थे and 25 girls थी. Similarly, if I say we have boys in a class, 60% boys and girls are 40%. तो ये हमारा percentage में comparison हो गया कि boys 60% है and girls 40% है एक क्लास में. सिमिलरली इफ आई से 60 बॉयज हैं एंड 40 गर्ल्स हैं तो 60 is to 40. और लास्ट क्वेश्चन में जो हमने रेशियो लिया था वही लेते हैं 30 is to 25. सो ऐसे ही परसेंटेज में अगर हमें कुछ भी शो करना है तो वो ऐसे होगा. 60% बॉयज हैं, 40% गर्ल्स हैं. नाउ लेट्स कम टू कन्वर्जन. नाउ वी नो व्हाट इज रेशियो एंड व्हाट इज परसेंटेज. Now let's come to conversion. How we convert? Suppose we are given 2:3. हमारे पास एक
एक रेशो है 2:3 एंड वी हैव टू कन्वर्ट दिस रेशो इन परसेंटेज. ओके, कन्वर्ट दिस रेशो इन percentage. So how we will convert? We will write 2 upon 2 plus 3. Total होगा इसका 5 into 100. Okay. Similarly 3 upon 5 into 100. So 2 upon 5 into 100 हो गया 5 2 10 0. So 40%. And 3 upon 5 into 100 again 20. So 60%. It means जो हमारा 2 है इसमें जो भी क्वांटिटी हमारी 2 है that is the number of that is 40% total and जो 3 है वो है 60%. means 2:3 है so ये है 40% is to 60%. ओके, सो ये हमारा रेशो कन्वर्ट हो गया परसेंटेज में. ओके, सिमिलरली अगर हमें ये पूछा जाए कि 2/3 टोटल इन अ होल कितना परसेंट है, सो हम उसके लिए क्या करेंगे 2/3 2:3 को लिखेंगे 2/3 एंड इसको डायरेक्ट फिर मल्टीप्लाई बाय 100. नाउ इधर टोटल नहीं आएगा, जस्ट 2/3 into 100. सो दिस विल बी 3 3s are 9 10 again 3 3s are 9 0.0 again 3 3s are 9. So this will be 66.6%. means 2:3 अगर हम किसी भी चीज का करते हैं that is nothing but 66.6% of that amount. So हमने अभी तक रेशो की बात करी. we talked about percentage, then we talked about conversion of ratio into percentage. एंड ऑल्सो अगर हमारे पास एक रेशो गिवन है हम ये बता सकते हैं कि वो टोटल इन अ होल कितना परसेंट है. ओके, सो आफ्टर दिस नाउ वी विल टॉक अबाउट एक और चीज वी हैव डन इन क्लास 7. दैट वाज आफ्टर दिस हमने किया था दैट इतना परसेंट ऑफ इतना कितना होता है. सपोज आई राइट 72% ऑफ 25. Okay, so how much is 72% of 25? So how we will calculate this? How much is 72% of 25? So 72% जब भी हमें किसी भी कोई भी नंबर we are given in percentage, so हम उसको 72/100 लिख सकते हैं. परसेंटेज को हटाने के लिए अपॉन 100 कर सकते हैं. We know that. So 72% of means multiplication of 25. तो 72% of 25 से हमें ये पता चल जाएगा कि 25 का 72% होता कितना है. Suppose there are 25 students in the class and 72% students are going on the trip. So we have to tell how many students are going on the trip. So for that we will calculate 72% of 25. Okay. So 5 5s are 25, 5 2s are 10, 0 as it is, 5 4s are 20, 2 2s are 4, 2 3s are 6 and 2 6s are 12. Now 2 1s are 2, 2 8s are 16. So it means 18 students are going on the trip. 72% of 25 is 18. Alright, it means 18 students are going on the trip and the rest 7 students are not going. ठीक है, so 72% of 25 is 18. So this was also the topic which we have already done in our previous class. Okay, so from here we will be starting with the new topics that we will be doing in this class, class 8. Okay, so our first topic will be, now after this our first topic will be increase and decrease percentage. Increase, decrease percentage. Now what is increase and decrease percentage? Suppose I tell you that I have that there is a car
whose price is 34,000. Okay, there is a car whose price is 34,000 and उसके जो प्राइस हैं दे आर इंक्रीज्ड 20% से इंक्रीज हो गए. It means that the car's original price is 34,000 and now it is increased by 20%. अब 20% और उसमें ऐड हो जाएगा. ठीक है. So how we will calculate? First we will calculate 34,000 का 20%. का 20% means of 20% of 34,000. See, 20% means upon 100 of 34,000. Okay. और what we can do is 34,000 पहले लिख सकते हैं. 34,000 का 20%. Okay, one and the same thing. So 34,000 का 20% we will find out. जो आएगा वो increased amount है, means वो हमारा 34,000 में ओरिजिनल प्राइस में ऐड होगा. Okay, suppose I tell you that इसको पहले हम करते हैं कैलकुलेट. 0 से 0 कट, 0 से 0 कट. Now 2 zeros as it is and 4 2s are 8 and 2 3s are 6. So 6,800 is the increased amount. Means अगर वो 20% increase हुआ है amount, means उस कार पे 6,800 और amount increase हो गया. Increase हो गया means हम add करेंगे. Means we will add 34,000 में 6,800. Okay, and now जो इसका जो प्राइस आएगा that will be the increased amount now. Okay, so now we will get 008 as it is. All right, now 6 plus 4 is 10. So 40,800 is the increased amount. Okay, now children, again I'm explaining once again. There was a car whose amount was 34,000. Okay, and उस कार पे 20% इंक्रीज हो गया. उसका अमाउंट 20% और इंक्रीज हो गया. ओके, सो नाउ वी विल कैलकुलेट कि 34,000 का 20% होता कितना है. ठीक है. सो 34,000 का 20% निकाला, दैट इज 6,800. Now 6,800 will be added to 34,000. Why? Because amount increase हुआ है. अगर यहाँ पे होता अमाउंट डिक्रीज हुआ है तो हम माइनस करते 6,800 फ्रॉम 34,000. ओके, नाउ बिकॉज इंक्रीज हुआ है तो हमने ऐड किया. ओके, नाउ ऐड करके आया 4,800. मीन्स जो कार पहले 34,000 की थी, नाउ इट इज ऑफ 4,800. ओके, नाउ द प्राइस ऑफ दैट कार इज 40,800. So this was increase and decrease percentage. Increase हो रहा है तो we will add. Similarly, if in the question we are asked that the amount is decreased by इतना percent, so we will subtract. Okay. Now our next topic will be finding discount. Now after increase and decrease percentage, I hope this is clear. Now our next topic will be finding discount. Now how do we find a discount? Discount means किसी भी चीज़ का जो अमाउंट है उसको थोड़ा सा लेस करके सेल करना. डिस्काउंट मीन्स जो हम कभी भी मार्केट जाते हैं, सो वी ऑलवेज आस्क दी शॉपकीपर प्लीज़ थोड़ा सा हमें डिस्काउंट दे दो इस प्रोडक्ट पे. सो इट मीन्स डिस्काउंट मीन्स सब्ट्रैक्ट करना, उस अमाउंट में से कुछ अमाउंट सब्ट्रैक्ट करना, डिस्काउंट मिलना. ठीक है. सो finding discount, especially for girls, this is very important. Finding discount. So suppose we go to the market and we find a product of rupees 300.
हमें एक प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा एंड द प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट इज 300 बट द शॉपकीपर सोल्ड अस दैट प्रोडक्ट फॉर 250. अब उसका प्राइस तो 300 था बट हमें वो 250 में मिला. सो हमें कितना डिस्काउंट मिला? कितना डिस्काउंट मिला मीन्स कितना हमें लेस पे करना पड़ा. वी विल सबट्रैक्ट 300 फ्रॉम 250. वी विल सबट्रैक्ट 250 फ्रॉम 300. सो इट मीन्स 50 आया हमारे पास. सो इट मीन्स 50 इज द डिस्काउंट दैट वी गॉट. डिस्काउंट वी कैन से और वी कैन से ऑफ मिला हमें इतना मीन्स हमें इतना कम पे करना पड़ा. डिस्काउंट किसी भी चीज़ पे मिलना मीन्स माइनस करना कुछ अमाउंट उस अमाउंट में से. ये कुछ डिक्रीज परसेंटेज से मिलता है. अभी लास्ट टॉपिक वी हैव डन इंक्रीज एंड डिक्रीज परसेंटेज. सो डिस्काउंट मीन्स उसका अमाउंट गिर जाना. सिमिलरली डिक्रीज परसेंटेज मीन्स उसका अमाउंट गिर जाना. सो दैट्स व्हाई दे आर वन एंड द सेम थिंग. नाउ ये तो था हमारे पास कुछ नंबर्स में. बट अगर मैं परसेंटेज में बोलूँ, सपोज you go to the market and आपको एक ड्रेस अच्छी लगी and the price of that dress was 220 rupees. Okay, you went to the market, आपको एक ड्रेस बहुत अच्छी लगी and the price of that dress was 220 rupees and also it was written 20% discount. What does this mean? मीन्स उसका जो अमाउंट है दैट इज 220 बट आपको वो 20% डिस्काउंट पे मिल रही है. सो हाउ वी विल कैलकुलेट दैट डिस्काउंट? लेट्स सी. द प्राइस वाज 220 पे 20% डिस्काउंट मीन्स इनटू 20 अपॉन 100. लेट्स सी हमारे पास क्या अमाउंट आता है. 0 से 0 का 0 से 0 का. सो दिस इज 2 2 4 and 2 2 4. Now 44 rupees. So children, it doesn't mean कि वो ड्रेस 220 की थी और हमें 44 rupees की मिल गई. No, this is the discounted price. This price is the discounted price. This means that हमें इतना माइनस करके वो ड्रेस मिलेगी. Means अभी हमें 220 में से 44 माइनस करना है एंड अब जो माइनस करके अमाउंट आएगा दैट वी हैव टू पे. 220 minus 44 is this is 10, this is 1. So 10 minus 4 is 6 and 11 and 1. So 11 minus 4 is 7 and 1. So 176. So it means that the dress was for rupees 220 and now it is for rupees 176. हमें 20% डिस्काउंट मिला means the original dress was of 220 rupees. We got discount of 20% and now the amount of the dress is 176 rupees. So always remember children that you have to subtract the discounted price from the original price. Only then you will get the अमाउंट जो आपको पे करना है. ऐसा नहीं है कि आप डिस्काउंटेड प्राइस पे ही वो ड्रेस ले जाओगे. 44 रुपीज़ की नहीं मिलेगी. दैट ड्रेस विल बी 220 माइनस 44 176 की आपको वो ड्रेस मिलेगी. सो दिस वाज द एग्जांपल ऑफ फाइंडिंग डिस्काउंट. कैसे हम डिस्काउंट फाइंड करते हैं. जितना उसका ओरिजिनल प्राइस है उसका जितना हमें डिस्काउंट मिल रहा है उतना पोर्शन निकाल देंगे. जो हमारा अमाउंट आएगा दैट विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल अमाउंट. नाउ व्हाई सब्ट्रैक्टेड? बिकॉज इसमें वैल्यू कम हो रही है एंड इंक्रीज परसेंटेज में वैल्यू इंक्रीज होती है. दैट्स व्हाई वी ऐड इन दैट. डिक्रीज परसेंटेज में हम माइनस करते हैं. सिमिलरली इन डिस्काउंट ऑल्सो वी माइनस. ओके, सो दिस वॉज द टॉपिक फाइंडिंग डिस्काउंट. नाउ now children, VAT, sales tax, GST, VAT, sales tax, GST. अब ये सब जो हैं these all will be added. Why? अब ये VAT, sales tax, GST ये सब add क्यों होंगे उसमें? Because see, suppose you go
टू मैकडी, आप मैकडी जाते हो एंड यू परचेज अ बर्गर दैट इज फॉर ₹30 बट यू पे ₹35, तो वो ₹5 जो आपने एक्स्ट्रा पे करे दैट इज दी टैक्स, GST, अब ये सब भी आपको ही पे करना है, सो दैट्स वाई यू एड ऑल दीज टू योर अमाउंट, ये सब होते हैं एड, ओके। डिस्काउंट होता है माइनस, ओके, बट वैट, सेल्स टैक्स, GST ये सब होते हैं हमारे अमाउंट में एड। सपोज आई टेल यू दैट ये तो हमारा आ गया ₹176, बट इस पे 10% अभी टैक्स लगेगा, ओके। सो इट मीन्स जो हमारे पास अब ₹176 आए हैं उसका 10% हम कैलकुलेट करेंगे एंड जो भी उसका 10% आएगा वो उसमें ऐड होगा। वाई? बिकॉज टैक्स तो हमें ही पे करना है, राइट? अब ये माइनस तो नहीं होगा, वो तो फिर अब हमारे अमाउंट में से और लेस हो गया, बट हमें तो ये पे करना है, तो ये ऐड होगा हमारे अमाउंट में, ओके। सो ऑलवेज रिमेम्बर दैट वैट, सेल्स टैक्स, GST ये सब ऐड होता है एंड डिस्काउंट माइनस होता है। इंक्रीज परसेंटेज में हम ऐड करते हैं एंड डिक्रीज परसेंटेज में भी सब्ट्रैक्ट। ऑलराइट, सो दिस वाज आवर टॉपिक, फाइंडिंग डिस्काउंट एंड वैट, सेल्स टैक्स, GST ये सब होते हैं ऐड। Now children, let's come to our next topic. So our next topic is price. Now price. Now what price? Price भी हमारे पास two types के हैं, selling price and cost price. Now what is the difference between selling price and cost price? Suppose for some time, let's suppose I am not the customer, I am the seller. मैं कुछ sell कर रही हूँ, suppose I am selling these markers. मैं ये markers sell कर रही हूँ, okay? अब मैं ये मार्कर सेल तो कर रही हूँ, बट मैं भी कहीं से ये मैन्युफैक्चर कर रही हूँ। आई एम ऑल्सो परचेजिंग फ्रॉम समवेयर। अब मैं कहीं से परचेज करके ही सेल कर रही हूँ, कहीं ना कहीं से तो ये आ रहे हैं। सो सपोज मेरे को ये ₹8 का एक मार्कर मिल रहा है, ओके। सो कॉस्ट प्राइस CP, ओके, एंड सेलिंग प्राइस SP, okay. Now I am getting this pen for ₹8, all right. तो मेरा कॉस्ट प्राइस 8 हो गया। कॉस्ट प्राइस होता है जिस प्राइस पे सेलर वो प्रोडक्ट परचेज कर रहा है, ओके। आई एम द सेलर, आई एम परचेजिंग इट एंड आई एम परचेजिंग इट फॉर फर्दर सेलिंग इट। मुझे आगे इसको सेल करना है, इसलिए मैं परचेज कर रही हूँ। सो तो मैंने जिस अमाउंट पे परचेज किया that is the cost price and selling price वो प्राइस है जिस प्राइस पे मैं आगे इसको सेल करूँगी, ठीक है। तो सेलिंग, अब सपोज मैं 1 पेन आपको कस्टमर्स को ₹10 का दे रही हूँ। सो आई एम परचेजिंग 1 पेन फॉर ₹8 एंड आई एम सेलिंग दिस पेन फॉर ₹10। इट मीन्स मुझे ₹2 का प्रॉफिट हो रहा है। सो अगर हमारा इफ आर cost price is less than the selling price, so it means we will be earning some profit, okay. And similarly, if our cost price is greater than the selling price, it means we are facing some loss. How? See, suppose मेरा cost price कौन सा price है? जिस price पे I am purchasing it from some factory or somewhere. So suppose मेरा cost price ही 10 है। suppose मैं
खुद ये पेन 10 रुपीज का परचेज कर रही हूँ एंड मेरा आगे सेल 8 रुपीज में हो रहा है एंड फर्दर आई एम सेलिंग दिस पेन फॉर रुपीज 8. तो अब मुझे 2 रुपीज का लॉस हुआ क्योंकि मैंने तो 10 रुपीज का परचेज किया एंड नाउ आई एम सेलिंग दिस फॉर रुपीज 8. सो मुझे 2 रुपीज का लॉस हुआ. इट मीन्स इफ माई कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन दी सेलिंग प्राइस, सो मुझे होगा लॉस. आई होप दिस इज क्लियर. वन मोर टाइम आई एम एक्सप्लेनिंग. सपोज आई एम मैन्युफैक्चरिंग दिस पेन, ओके, एंड मुझे ये पेन 8 रुपीज का पड़ रहा है. वन पेन मुझे, अगर मैं मैन्युफैक्चर कर रही हूँ तो मुझे वन पेन 8 रुपीज का पड़ रहा है, बट आई एम फर्दर सेलिंग वन पेन फॉर रुपीज 10. ओके, अब मैंने बनाया 8 रुपीज में एंड आई एम सेलिंग फॉर रुपीज 10. सो इट मीन्स मुझे 2 रुपीज का प्रॉफिट हुआ. सो इफ माई कॉस्ट प्राइस इज स्मॉलर देन दी सेलिंग प्राइस, अगर हमारा सेलिंग प्राइस बड़ा है तो इट मीन्स हमें प्रॉफिट होगा. अगर हमारा सेलिंग प्राइस ही छोटा है इट मीन्स हमें लॉस होगा. अगर मेरे को बनाने में 10 रुपीज लग रहे हैं इस पेन को एंड आई एम सेलिंग फॉर रुपीज 8, तो मेरे को तो लॉस हो रहा है 2 रुपीज का ऑन ईच पेन. ईच पेन पे 2 रुपीज का लॉस हो रहा है. सो ऑलवेज रिमेंबर दिस दैट इफ CP इज स्मॉलर देन SP हमें प्रॉफिट होगा एंड इफ CP इज ग्रेटर देन दी SP हमें लॉस होगा. ओके, एंड ऑल्सो हाउ वी कैलकुलेट द प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंटेज. प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल्स टू जितना हमें प्रॉफिट हुआ अपॉन CP इंटू 100. CP मीन्स कॉस्ट प्राइस एंड सिमिलरली लॉस परसेंटेज इक्वल्स टू लॉस अपॉन CP इंटू 100. ओके, सो बेस हमेशा हम CP को लेंगे. ओके, बेस विल बी कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस मीन्स द प्राइस ऑन विच द मैन्युफैक्चरर इज manufacturing the product or the seller is purchasing from somewhere else. So वो प्राइस होता है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस होता है जिसपे कस्टमर्स को मिलता है. ठीक है, सो प्रॉफिट परसेंटेज इज प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100 एंड लॉस परसेंटेज इज लॉस अपॉन CP इंटू 100. मीन्स ऑलवेज द बेस विल बी CP not SP. Always remember this. So now children, till here I have completed almost every topic of this chapter. Only one major topic is left, that is interest. Okay, so now interest is of two types, simple interest and compound interest. Now that we will discuss in our next video because it is a quite lengthy topic that we'll be discussing in our next video. So in this video we have completed each and every topic except the topic interest. Okay, so till then stay tuned for my next video, and till then watch this video again, revise all the questions, take screenshots, write notes and start doing the questions and come up with problems and comment in our comment section below. If you have any problem, any query, I will definitely answer. Okay, so stay tuned for my next video. In that video we'll be discussing interest, simple interest and compound interest in detail. Thank you.